हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में बात की थी कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके लिए यहाँ पे तीन मॉडल है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो आज हम फर्स्ट बात करेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। So a business organization, instead of developing its own software application, generally uses the software by making payment to the cloud service provider. The service provider hosts the software at its web server so that the company does not need to install it. The service provider will also manage the software on behalf of the company. This model relieves the business organization from buying, installing, and maintaining software or hardware. All they need is an internet connection that allows them to connect to the software and use it. Software as a service examples include customer relationship management as a service. Salesforce.com is one of the most used cloud service for customer relationship management software. तो सॉफ्टवेयर सर्विस में क्या होता है कि जो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपना खुद का सॉफ्टवेयर क्या करते, डेवलप करते, किसके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे क्या किया हुआ है, एक salesforce.com है, उसने खुद का क्या किया है, ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पूरा उसका सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। देन आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, so business organization may hire the hardware infrastructure as a service from the cloud service provider instead of establishing its own physical resources. The hardware at cloud is used to support different operations such as computation, storage, printing, backup, and networking components. The service provider owns all the equipment and is responsible for housing, running, and maintaining. It's some of the IaaS provider, यानी infrastructure as a pro service provides are Windows, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine, and HP Cloud. सो उसके बाद बात करेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हियर इज जनरली अ सॉफ्टवेयर कंपनी दैट क्रिएट्स द सॉफ्टवेयर यूजिंग टूल्स एंड libraries from the service provider. It also controls software deployment and configuration settings. The service provider provides the network service, servers, storage, and other services that are required for developing software. This model facilitates the deployment of software applications without the cost and complexity of buying and managing the underlying hardware and software and providing hosting capabilities. Many companies have ventured into the domain of cloud computing. यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दिया गया, कंपनीज के नेम दिए गए जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे है सन माइक्रो सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, डेल, VMware, EMC स्क्वायर, HP, गूगल, ओरेकल, अमेजोन. ये सब क्या है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके नाम है. So the cloud computing scenario can be distinguished from normal scenarios by its key characteristics such as it's usually offsite, accessed over the internet, minimal IT knowledge is required to access the service, available on all platforms from desktop to mobile phones. Today, cloud computing facility is extremely useful for a consumer and for the business, for it saves the establishment costs. देन आफ्टर हम बात करेंगे इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑब्जेक्ट और ह्यूमन रिकॉग्नाइजेशन. सो टुडे वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ ubiquitous computing, wherein we are surrounded by computers and sensing devices throughout the physical environment. Tough present, these computers are effectively invisible to the user. Such ubiquity has been made possible due to availability of cloud computing platforms. One of the major problems in ubiquitous computing domains is the identification of the object like a specific computer or sensor. In this section, we will learn about some techniques like radio frequency identification, biometrics, global positioning system, and speech recognition that are used for identifying objects. ठीक है, तो उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, वो आपका जो 30% सिलेबस कट हो रहा है उसके अंदर वो कट हो जाएगा. उसके बाद बायोमेट्रिक्स आता है. सो बायोमेट्रिक्स में हमको सिर्फ
जो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन है वो पढ़ना है, ठीक है। सो फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सो फिंगरप्रिंट हैज़ बीन यूज एज एन अल्टरनेट टू साइन फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ। मीन्स अभी फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन में क्या है, साइन करने से ज़्यादा फिंगरप्रिंट का यूज़ होता है। सो जनरली पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू राइट व्हेन ही सी नीड्स टू साइन अ लीगल डॉक्यूमेंट puts his or her thumb on the ink pad and creates its impression on the document. It is an authentic mode of identifying a person. Means जो लोग अभी पढ़ना ही नहीं जानते तो वो लोग साइन कैसे करेंगे। सो उनके लिए क्या बनाया गया, एक रूल बनाया गया कि उनका जो थंब है, ठीक है, उसका जो इंक पैड पे जो भी आप थंब लगा के फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट पे लगा हो तो वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सो द मॉडर्न फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म यूजेस द इंप्रेशंस मेड बाय द यूनिक मिनिट रिच फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न्स फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय रिसर्चर्स that tough to fingerprint patterns are similar to fingerprints do not have identical individual rich characteristics. Also, the pattern once formed do not get distorted except under some unusual circumstance like accident। मीन्स उसमें क्या होता है कि जो फिंगरप्रिंट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको बताई गई है ऐसे जो, तो हम जैसे हमारी फिंगरप्रिंट डालते हैं कभी तो ऐसे वो क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। सो उसका मतलब क्या है कि एक तो वहाँ पे पर्टिकुलरली जो इंसान होता है, ठीक है, तो ह्यूमन की क्या होती है, पर्टिकुलर एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो सबके सेम नहीं होती है। सो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मोस्टली तो सेम नहीं होती, लेकिन कई बार यहाँ पे आपको बोला कि कभी सर्कमटेंसेस ऐसे हो जाते हैं अनयूजुअल कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हो जाती है, डॉक्टर्स अगर कुछ ऐसे उसके हाथ कभी ठीक करे या कुछ करे तो उसके अंदर चांसेस रहते हैं कि उस कोई किसी का वो फिंगरप्रिंट मैच हो जाए। सो फिगर नंबर 13.9 shows example of fingerprint features and a fingerprint reader used to mark attendance। मीन्स यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि ये फिंगरप्रिंट बताएगी कि कैसी दिखती है, और यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट रीडर मशीन है, किसके लिए यूज होता है कि अटेंडेंस आपको मार्क करनी है उसके लिए। सो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स अवेलेबल इन द मार्केट टुडे प्रोवाइड फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एज मोड ऑफ ऑथेंटिकेशन। यानी आपको अगर कंप्यूटर चालू करना है, ठीक है, लैपटॉप चालू करना है, अभी मोस्टली ऐसे आ गए कि लैपटॉप अगर आपको ऐसे चालू करना है, फ़ोन चालू करना है, तो आप अपने फिंगरप्रिंट से क्या कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो किसके लिए फिंगरप्रिंट यूज़ होता है, फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट, फॉरेंसिक एंड कॉमर्शियल। तो गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, सो फर्स्ट इज़ आधार कार्ड के लिए, रेशन कार्ड के लिए और बीपीएल कार्ड्स के लिए। देन आफ्टर ड्राइवर्स लाइसेंस में ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए भी हम थंब वहाँ पे देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर वेलफेयर डिसबर्समेंट एंड पासपोर्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। फॉरेंसिक में कहाँ पे यूज़ होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कॉर्प्स आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड कीपिंग एंड टेररिस्ट आइडेंटिफिकेशन एक्सेट्रा। देन आफ्टर कॉमर्शियल में कहाँ पे यूज होता है, कंप्यूटर नेटवर्क लॉगऑन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिक्योरिटी, स्मार्ट कार्ड्स लाइक एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड, फैसिलिटी एक्सेस कंट्रोल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, डिस्टेंस लर्निंग एक्सेट्रा। तो ये सब जो कहाँ पे यूज होता है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन होता है, ठीक है, वो इस सब के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इरीज रिकॉग्नाइजेशन है वो आपका 30% सिलेबस कट हो रहा है, और यहाँ पे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है वो भी कट हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही हम रखेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।